Dear student, our chapter 3rd is collection of primary and secondary data. In the previous video, we are discussing the methods for collecting the primary data. For the primary collection, here are some methods: direct personal interview, indirect personal interview, telephonic interview, and information from the correspondent, mailed questionnaire, and questionnaires filled by enumerators. These are the different methods, and all the methods are important for the depend upon the situations and the particular reasons. सारी मेथड्स का इम्पोर्टेंस है. कई बार डायरेक्ट इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन एरिया अगर आपका स्मॉल है तो आप आसानी से एक से इंटरव्यू ले सकते हैं. समटाइम द इनडायरेक्ट इंटरव्यू इज इम्पोर्टेंट, समटाइम द टेलीफोनिक एंड सो. Our today's topic is first topic is pilot survey. Before going to the survey of any survey or any inquiry, using the methods, and these methods may be the direct, indirect, telephonic, and all the things. If we test or pre-test of a particular methods or a survey is called pre-test. From the practical point of view, it is found useful to conduct a pre-test. So it is very useful for conducting a pre-test because the testing of timing and test of the cost, टाइम एंड कॉस्ट. एक पर्टिकुलर मेथड्स को चूज करना और उसका टोटल कॉस्ट क्या होगा, उसमें कितना टाइम कंज्यूम होगा, इन सब को देखने के लिए फर्स्ट वी विल यूज द पायलट सर्वे और द प्री टेस्ट. सो प्री टेस्ट इज हेल्पफुल फॉर चूजिंग द सुटेबल मेथड्स एंड देयर प्लस एंड माइनस पॉइंट्स. Next is the census and sample survey. Our next topic is census and sample survey. So before going to the census and sample, here the two points are important: population and sample. Population and sample. So first of all, we will understand the population and sample. The meaning of population is all the persons are related to the inquiry, the subject to the inquiry. All the persons are living in a particular regions which are under the inquiry is called population or universe. So the meaning of population and universe is the वो पर्सन जो एक पर्टिकुलर इंक्वायरी के अंदर आते हैं, वो सारे पर्सन, ऑल द पर्सन्स इज कॉल्ड द पॉपुलेशन और द यूनिवर्स. फॉर एग्जांपल, पूरे राजस्थान आपको एक इंक्वायरी करना है, होल द राजस्थान. सो द होल राजस्थान, ऑल द पर्सन आर लिविंग इन दिस स्टेट इज द पॉपुलेशन. कई बार ये चेंज भी हो सकता है, जैसे अपना टाउन निम्बाहेड़ा की बात करें. इफ यू वांट टू कंडक्ट ए सर्वे इन ए पर्टिकुलर कॉलोनी फॉर द कोविड-19, एक पर्टिकुलर कॉलोनी को अगर आपको, जैसे आदर्श कॉलोनी, so all the person are living in a आदर्श colony is the population, not all the population in the Nimbaida. So all the elements are under the inquiry is the population or the universe. For example, find the average height of 500 girls
average, find the average height of 500 girls in a particular hostel or a college. So add the height of 500 girls and divided by 500 is the simple way. So all the heights of are included in this method. So this is the population. सारे जो एलिमेंट है उनका यूज होगा, that is the population. In the sample, on a particular methods, we use some items or some elements, some observation. For example, 500 गर्ल्स की एवरेज हाइट फाइंड करना है, तो अगर हम सिर्फ क्या ले लें 50 गर्ल्स और 50 गर्ल्स को चूज करें और उनकी हाइट को फाइंड करें, एंड द एवरेज हाइट ऑफ 50 गर्ल्स, और उसी एवरेज हाइट को हम फाइनल आंसर मान के चलेंगे, एवरेज हाइट ऑफ 500 गर्ल्स. सो दिस इज द सैंपल. सो इन ए सैंपल मेथड it is a part of a whole. Here whole means population or the universe, and sample is a particular part. एक particular part हो सकता है, एक जैसे पूरा राजस्थान में से एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का सर्वे कर लो और उसी के रिजल्ट को होल राजस्थान पे इम्प्लीमेंट कर लो. दिस इज द सैंपल. एंड द मेथड्स for selecting the observation, selecting the elements is called sampling. कुछ जिस मेथड्स को हम यूज करते हैं चूज करने के लिए उसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग. तो सैम्पलिंग इज द मेथड एंड सैंपल इज ए पार्ट ऑफ ए होल. So both the methods are important in the different situation, and sampling method is important in, for example, the agriculture production on a particular years. तो हम सारे रीजन में जाने के बजाय एक पर्टिकुलर रीजन का सर्वे कर लो और उसी को for our convenience it will be implemented on the whole universe, in the lab also, for testing of malaria, typhoids. We take out the 2-3 drops of blood, 2-3 ड्रॉप को लेके ही टेस्ट करते हैं और उससे पूरी बॉडी का टेस्ट डिसाइड होता है. दिस इज आल्सो द सैंपल मेथड. एंड for a sample means a small population of items, and from a universe for the statistical study. It's a small element out of the whole universe. And next is here some methods for sampling. Next is the methods of sampling. There are two types of methods. First, random sampling and non-random sampling. तो इसके नेम से क्लियर है. इन द रैंडम सैम्पलिंग we choose, there is no restriction, we choose any element from the whole population. वह आपका इन्वेस्टिगेशन एरिया है जिसमें 5000 पर्सन्स है, तो उन 5000 पर्सन्स में से आप किसी को भी ले सकते हो रैंडमली. मतलब तो आप उसको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को भी ले सकते हो, लास्ट को भी ले सकते हो, बीच वाले किसी को भी ले सकते हो. दिस आर द रैंडमली वी विल चूज. अगर आपको चूज करना है 50 एलिमेंट्स आउट ऑफ द 5000, तो आप 50 आप कहीं से भी ले सकते हो. दिस इज द रैंडम सैम्पलिंग. एंड दिस इज द नॉन रैंडम सैम्पलिंग. हियर सम रेस्ट्रिक्शंस, या कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को आपको फॉलो करना है. इन द रैंडम सैम्पलिंग फिर इसमें दो मेथड्स हैं. फर्स्ट है कि अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग.
कुछ भी बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शन नहीं। फर्स्ट मेथड हो गई सिंपल और अनरेस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग। बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कहीं से भी हम एलिमेंट को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग। यहाँ कुछ बाउंडेशन है। रेस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग। In the restricted sampling, in the restricted sampling, यहाँ पर 3 different ways है या 3 methods से समझ लो। In the restricted sampling, first stratified sampling. In this method, whole universe is divided into the different strata or a homogeneous groups. बिल्कुल सिंपल है। पूरे यूनिवर्स में को हम एक जैसे जो डेटा होंगे होमोजेनियस ग्रुप, सेम टाइप के ग्रुप में डिवाइड करेंगे एंड चूज द इक्वल एलिमेंट फ्रॉम ईच ग्रुप इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। नेक्स्ट है वन बाय वन वी विल डिस्कस फॉर ऑल दिस मेथड एंड नेक्स्ट इज द सिस्टमैटिक सैंपलिंग। Systematic sampling, a kind of randomness is using for this method. एक particular pattern को follow करें। Last is the cluster sampling और multi stage, ये एक और इसका नाम है multi stage sampling. These are the 3 different methods for restricted sampling and restricted and unrestricted in the random sampling. For the randomly we can choose and non-randomly there are 3 methods. First, judgment methods. Second रहेगी आपकी quota sampling and C is the convenience sampling. Convenience sampling. These are the methods for sampling from the universe. पूरे यूनिवर्स में से कुछ डेटा को सेलेक्ट करना, वो होता है आपका सैम्पलिंग। एंड हियर सम different methods is the randomly and non-randomly. Randomly 2 types, unrestricted and restricted. Non-randomly 3 different, judgment, quota sampling and convenience sampling. So first of all we will take the random sampling and unrestricted sampling. First method is the simple or unrestricted sampling. In this methods there is no restriction, so all the observation in under the subject to the inquiry have a equal chance, and it's very easy, and it is depend upon the laws of probability. In the probability all the observation have a equal chance. There are 2 ways. यहाँ पर भी वापिस इसके 2 तरीके। फर्स्ट ए लॉटरी मेथड, ये सब आपको क्लियर है। लॉटरी मेथड आप जनरली लॉटरीज वगैरह में आप देखते हो, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लो ऑब्जर्वेशन है 500 ऑब्जर्वेशन है, तो राइट द नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑन ए पर्टिकुलर स्लिप्स। सभी को एक नंबर देंगे फ्रॉम 1 to 500 एंड गिव द नंबर एंड ऑन ए पर्टिकुलर स्लिप, सेम साइज ऑफ स्लिप, सेम कलर ऑफ पेपर आर यूज्ड इन फॉर मेकिंग द स्लिप्स।
एंड नंबरिंग द स्लिप्स फ्रॉम 1 to 500 एंड फोल्ड देम, उसको फिर फोल्ड कर दो एंड पुट ऑल द स्लिप्स ऑन ए बाउल और इन ए बकेट एंड मिक्सड वेल, उसको अच्छे से मिक्स कर लो एंड पुट द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मिक्स्ड ऑब्जर्वेशन, और उस बाउल के अंदर अच्छे से मिला दो और फिर उसमें से ऑब्जर्वेशन आप चूज कर लो। सपोज आपको 3 ऑब्जर्वेशन लेने हैं, लॉटरी के अंदर से 3 विनर्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पिक अप द वन स्लिप इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड देन एंड थर्ड, तो दिस आर द लॉटरी मेथड। तो अब इसके भी कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट्स है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है एंड अगर अच्छे से मिक्स वेल नहीं किया तो भी किसी न किसी को आप किसी ऑब्जर्वेशंस को आप इक्वल चांस नहीं दे पा रहे हो, तो इट इज द कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पर टेबल ऑफ रैंडम नंबर, टेबल ऑफ रैंडम नंबर। ये भी सिंपल है, एक पर्टिकुलर टेबल्स भाई आपको रैंडमली लेना है तो ऑब्जर्वेशन कहीं से भी ले सकते हो, 500 ऑब्जर्वेशन है, उनको आप कहीं से भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट से भी ले सकते हो, लास्ट से भी ले सकते हो, बीच में से भी ले सकते हो, कंटिन्यूस भी ले सकते हो, अनकंटिन्यूस भी ले सकते हो, तो इन द रैंडमली देयर इज नो बाउंडेशन। तो टेबल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग में क्या करते हैं, इस 500 ऑब्जर्वेशन के एग्जांपल से समझ। पहले तो क्या करो, उनको एक पर्टिकुलर नंबर डिसाइड करो फ्रॉम 1 to 500 एंड पुट इन ए सिस्टमेटिक मैनर्स, उनको ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से लिखो। अब 500 है तो 3 डिजिट है, तो इसको ऐसे लिखो 001, इसको 002, 003, 004 एंड सो इस टाइप से। कहीं पर होगा 212, 213, 214 एंड राइट डाउन ऑल दिस ऑब्जर्वेशन। And if we choose only the 15 observation या 10 observation, तो यहाँ पर एक टेबल होती है, a particular fix frame, a particular table is put on this observation horizontally or vertically। जैसे 15 नंबर्स आ जाए, 15 नंबर्स ही चूज करना है, तो टेबल एक या आपका एक स्केल इस टाइप से रहेगा कि उसके अंदर 15 ऑब्जर्वेशन आ जाए, तो उस टेबल को सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर रखा और जो उस स्केल के अंदर है, सपोज ये स्केल है, इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा, तो इसके अंदर जो एलिमेंट आ जाएंगे वो हो गए आपके सैम्पलिंग। तो दिस इज द टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तो इन द सिंपल मेथड्स देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट इज द लॉटरी मेथड, जनरली हम लॉटरी में इधर उधर सुनते ही हम, और सेकंड है टेबल ऑफ रैंडम नंबर। नेक्स्ट इज द रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, अब इसका डिस्कशन करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, अब रेस्ट्रिक्शन में कुछ यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, हियर द मीनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन इज ए पर्टिकुलर पैटर्न we are following for selecting the observation। फर्स्ट बात करेंगे stratified sampling। in this sampling the whole universe is divided into a different strata। the meaning of strata is the homogeneous डेटा और द ऑब्जर्वेशन, एक टाइप के जो एक जैसे डेटा है उनको बनाओ। कैसे, जैसे सिंपल सा एग्जांपल, आपके पास 50 स्टूडेंट के मार्क्स है, 50 स्टूडेंट के मार्क्स है 0 से 25 के बीच में। अब एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करो। कैसे,
0 से 10 वाले मार्क्स एक डेटा के अंदर आ जाए, 11 से 20 एक जगह आ जाए, और 21 से 0 से 30 लगा, तो 21 से 30 वाला एक होमोजेनियस ग्रुप बन जाए। एंड सेलेक्ट द इक्वल एलिमेंट फ्रॉम ईच स्टेटा। यहाँ से भी 5 स्टूडेंट लेने हैं, यहाँ से भी 5 लेने हैं, यहाँ से भी 5 लेने हैं, तो टोटल क्या हो गए 15। और फिर उन 15 का अगर एवरेज निकालना हो तो सम करके डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 15। सो दिस इज द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ईच स्ट्रेटा, नॉट ए ऑल द एलिमेंट। तो देखो यहाँ पर सिर्फ 5 चूज किए, तो अदर 5 तो रिमेनिंग है। सो वी कैन चूज फ्रॉम द equal homogeneous data from a different strata. So in this methods, the universe is divided into the strata or a homogeneous group. An equal sample is drawn from each strata or the layer at random. This method is stratified random sampling. एक एग्जांपल है यहाँ पर, ये तो पॉकेट मनी ऑफ ए कॉलेज स्टूडेंट। What is the average pocket money of a college student? तो यहाँ पर कॉलेज के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, BSc, BA, फिर आपका MSc, PhD, तो ये सारे हो गए स्ट्रेटा। अब फिर उसमें से ईच स्ट्रीम में से आप 5 स्टूडेंट को चूज कर सकते हो, फिर उनकी पॉकेट मनी का सम करके डिवाइड कर लो। दिस इज द स्ट्रेटिफाइड sampling. Next है systematic sampling. Next is the systematic sampling or Cauchy random sampling. Second is the systematic sampling. In this method, a kind of randomness is used for finding or the selecting the observation. A kind of randomness is achieved by preparing the list of some random order. एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे, a kind of randomness. A kind of randomness is followed by the investigator or selected persons. अब कैसे देखो काइंड ऑफ रेंडमनेस कैसे, जैसे आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन है, टोटल कितने 100। अब आपने लिखा 1 2 3 4 5 और अप टू कहाँ था 10 तक, फिर 11 से लेकर 20 तक एंड सो ऑन। इफ वी द टोटल नंबर इज 100, सो इफ वी choose the fifth number for a kind of randomness. Yeah, if we divide a particular randomness is by 10, yeah, by 15 or any number. अगर आपने यहाँ फर्स्ट 5 को चूज किया और आप इसको डिवाइड कर लो, आपको 10 का आप पर्टिकुलर पैटर्न लेते हो, तो 10 के इंटरवल में चलना आपको। अगर आपने फर्स्ट नंबर चूज किया 5, तो नेक्स्ट आपको लेना होगा 15, फिर लेंगे 25, फिर लेंगे 35, फिर लेंगे 45 एंड सो ऑन। ए काइंड ऑफ रैंडमनेस इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग दिस मेथड। ये अपनी चॉइस के ऊपर है, हम 10 के कन्वीनियंट पे भी ले सकते हैं, 20 पे भी ले सकते हैं, जो इसको होल नंबर, वी विल गेट द होल नंबर एज ए आंसर। So this is the systematic sampling. अब इसमें भी कुछ प्लस माइनस इसके भी रहेंगे। ये एक तो ये सिंपल मेथड है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है, और इसके कुछ डीमेरिट्स भी रहेंगे, क्योंकि आपने जिस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया वो तो आपका सिलेक्शन में, और अदर को आप स्किप कर रहे हो। And last is the cluster sampling. In these methods, sampling is carried out in a number of stages.
and this is done when we know for getting reliable result we have to divide and subdivide a universe according to its characteristics. In a cluster sampling, we will divide all the observation, all the population in a different stage or in a different cluster. For example, आपको पूरे कंट्रीज का इंडिया का कुछ पर्टिकुलर सर्वे करवाना है, सेंसस ही ले लो, तो उसमें या सेंसस में हम जनरली सेंसस सर्वे यूज करते हैं. अगर आपको कुछ एक पर्टिकुलर हेल्थ से रिलेटेड ही अगर लेना हो तो आप उसमें क्या करोगे, पूरे कंट्रीज को आप डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करोगे, फिर डिफरेंट स्टेट्स में, स्टेट्स के बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आपके टाउन्स, और टाउन के बाद विलेज, ये सारे हो गए डिफरेंट स्टेज. एंड अगेन बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर मेथड्स फॉर सेलेक्टिंग द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डिफरेंट स्टेज, फिर अलग अलग स्टेज से हम ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करेंगे. सो दिस इज द क्लस्टर और मल्टी स्टेज. यहाँ सारे डिफरेंट स्टेज हो गए, में आपका जोन वाइज, फिर स्टेट वाइज, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर टाउन एंड अगेन विलेज. अब डेफिनेटली इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग, टाइम यहाँ पर आएगा एंड इट इज कॉस्टली. सो दीज आर द 3 different methods of restricted sampling.